श्रीमती जया बच्चन जी। Thank you, sir. Sir, in a country where groceries reach doorsteps in under 15 minutes, pizzas in 30 minutes, via quick commerce platforms, patients bleed to death because ambulances take hours trapped in traffic, lacking dedicated emergency lanes despite Supreme Court 2018 directives. No national data tracks these tragedies. Recent cases: a Mussoorie tourist 40 minutes jam 2025, Kerala due to 30-minute Kozhikode jam 2024, and Mumbai infant 5-hour delay 2025. The recent tragic death of a couple who bled to death because there was absence of trauma center nearby. So 60% ambulances arrive late, with urban delays averaging 15 to 30 minutes due to absence of green corridors and police escorts, missing the golden hour for 55% accident victims. No dedicated lanes on highways despite National Ambulance Code 2016. These critical failures need to be taken notice of and dealt with immediately. Sir, through you, I suggest immediate nationwide mandate for dedicated emergency lanes with AI traffic signals prioritizing ambulances, 30-second green corridors, enforcing Supreme Court 2018 Ambulance Corridor Directive via Ministry of Road Transport and Highways, penalties on violators. High-level probe into ambulance delayed deaths should be taken on priority basis in Parliamentary Committee for Health and Family Welfare. Thank you. Vande Mataram. श्रीमती रेखा शर्मा जी। Thank you, Chairman, sir. I rise today to draw the attention of this august House to an urgent yet often overlooked concern that profoundly impacts the lives of women across the country. The severe shortage of accessible, gender-sensitive mental health support, particularly for survivors of violence, harassment and trauma. While Modi government's initiatives such as Telemanas and district mental health programs are commendable, some gaps persist, especially in rural, marginalized and low-income communities. Stigma, lack of awareness and scarcity of trained professionals prevent countless women from receiving timely care. Survivors of domestic violence, cyber harassment, acid attacks, trafficking and workplace abuse frequently carry long-lasting psychological scars. These traumas affect not only emotional well-being but also women's ability to rebuild their lives, pursue education and employment, and participate fully in society. Yet, the mental health system that should support them remains fragmented and under-resourced. I urge the government to deploy dedicated women's mental health counselors at one-stop centers, police stations, and district hospitals, ensuring immediate and specialized assistance. Telemanas outreach should be expanded and integrated with women's helpline, self-help groups, and Anganwadi worker network. Trauma-informed training for police, medical staff, and legal aid personnel is essential to equip first responders. Additionally, community-based mental wellness programs through SHGs can help reduce stigma, provide early interventions, and create a safe space for women to seek support. Thank you, sir. डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सभापति जी, उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 50 साल से भी अधिक समय की पुरानी है। आबादी, क्षेत्रफल और लंबित मुकदमों की संख्या को देखते हुए यह न्याय संगत मांग है। 1986 में लोकसभा में माननीय अटल जी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते भी इस मांग का समर्थन किया था और उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद जी, नारायण दत्त तिवारी जी, श्रीमान राम नरेश यादव जी, बाबू बनारसी दास जी
और सुश्री मायावती जी ने भी सदन में और राज्य सरकार की तरफ से सहमति पत्र दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने नसीरुद्दीन बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अपील ट्रिब्यूनल में 1997 AIR + 313 में यूपी हाईकोर्ट अमेलगमेशन ऑर्डर 1948 के पैरा 7 और 14 की विस्तृत व्याख्या की है और उस व्याख्या में उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में कोई स्थायी सीट नहीं है। इलाहाबाद लखनऊ की सीट परिवर्तित की जा सकती है। 18वें विधि आयोग ने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देश में 4 पीठ स्थापना करने की संस्तुति भी की है। इलाहाबाद में भी जजों के 160 पद स्वीकृत, 70 कुल कार्यरत हैं। लंबित मुकदमों की संख्या देखते हुए 200 पद स्वीकृत होने चाहिए। 21/7/1986 में इसी सदन में राज्यसभा में तत्कालीन विधि मंत्री हंसराज भारद्वाज जी ने भी इसका समर्थन किया था। विशेष बात यह है कि 15/4/2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने निर्णय किया था कि ई फाइलिंग सेंटर और हाइब्रिड सिस्टम से सुनवाई आज से 15 दिन के बाद की जाएगी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश तो जारी किया। देश के अन्य सभी जनपदों में ई फाइलिंग सेंटर स्थापित हो गए हैं और 3 महीने के बाद दोबारा आदेश जारी करके उन्होंने ई फाइलिंग सेंटर की अपने पुराने आदेश को कैप्टन अबायंस रख दिया। भारत सरकार का भी निर्णय है कि देश के सभी जनपदों में 444 ई फाइलिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उसके लिए 744 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारत सरकार ने बजट में की थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया कि ई फाइलिंग सेंटर पर केवल प्रयागराज बार में रजिस्टर्ड वकील ही कर सकेंगे। तब फिर भारत सरकार का निर्णय ई फाइलिंग सेंटर का 15/4/2023 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय कोर्ट रूम में और उसको प्रशासनिक आदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैप्टन अबायंस रखने का काम किया है। मेरा इस संबंध में विरोध है। मुंबई हाईकोर्ट ने 5वीं बेंच कोल्हापुर में बना दी और उत्तर प्रदेश में 10,33,000 मुकदमे लंबित हैं। लंबित मुकदमों को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश में अब 4 बेंच की आवश्यकता है। मेरठ, आगरा, गोरखपुर और काशी और इन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हो। मेरा एक और निवेदन है, एक्ट में प्रावधान है, हमारा 682 किलोमीटर इलाहाबाद है, 450 किलोमीटर इलाहाबाद लखनऊ है। जब तक हमारी इलाहाबाद बेंच का परिवर्तन करके मेरठ, आगरा, लखनऊ और बनारस में बेंच मिले, तब तक हमको लखनऊ में से महातिक। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे देश के किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया है। सभापति जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था में खेती उत्पाद का बड़ा योगदान है। किसान देश का बहुत ही मेहनती है। ये देश के करीब 140 करोड़ लोगों का पोषण भी करता है और साथ ही बहुत बड़े पैमाने पे हमारा खेती उत्पाद एक्सपोर्ट भी होता है। पूरी तरह ये किसान अपना क्लाइमेट चेंज पर निर्धारित है सर। कभी अकाल, कभी अतिवृष्टि से ये किसान प्रभावित होता है। खेती उत्पाद में इसका नुकसान भी होता है। इसी के चलते 24 फरवरी 2019 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी, जिससे आज तक करीबन देश के 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। जो राशि अब तक दी गई है वो 3.70 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में वर्क की गई है। 11 करोड़ किसान लाभार्थी है, फिर भी कई किसान इस योजना से वंचित है, तो इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, मैं मानता हूं। सर, पहला मुद्दा है वर्तमान नियमों में इसके अनुसार फरवरी 2019 के बाद यदि किसी व्यक्ति ने बख्शिश पत्र, खरीद अथवा किसी अन्य लीगल माध्यम से जमीन अपने नाम की हो और उसका नाम 7/12 एक्सट्रैक्ट और 8 में दर्ज हो गया हो, तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके कारण देश भर में लाखों ऐसे नए किसान हैं जो विशेष रूप से युवा हैं। ये युवा किसान भूमिहीन से भूमि मालिक बने किसान एवं उत्तराधिकारी बंटवारे से नए रिकॉर्ड धारक बने किसान इस महत्वाकांक्षी योजना से के लाभ से वंचित हो रहे हैं। दूसरा सर, स्पेलिंग मिस्टेक, आधार कार्ड मिस्टेक, बैंक अकाउंट के डिटेल मिस्टेक की वजह से भी कई किसान इससे वंचित है। उसका रेक्टिफिकेशन किया जाता है, लेकिन पोर्टल में भी कई बार इश्यू होता है और करेक्शन करने के बाद भी सेंटर और स्टेट का जो समन्वय होता है पीरियडिकली इसमें बैठक होती है,
इसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन तुरंत नहीं मिलता है। तो मैं ये मांग करता हूं कि तुरंत इसका रिफ्लेक्शन हो और इन्हें इसका लाभ हो। तीसरा सर, किसी भी किसान का अगर मृत्यु होता है तो ये योजना का लाभ उसके सक्सेसर को नहीं मिल रहा है। मिलने के लिए जो सक्सेसर है, वो जो लीगल हेयर है, उसका डेथ सर्टिफिकेट्स, सक्सेशन प्रूफ, यदि सब पेपर देने की जरूरत होती है, जो दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें देरी होती है। तो ये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पीएम किसान पोर्टल पर भी एक ऐसा सक्सेसर मॉड्यूल बना जाए जिसमें सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो। लोकल लेवल कोई भी वेरिफिकेशन हो सकता है, जिससे तलाटी है, प्रांत है या फिर ग्राम सेवक होता है। अगर ये श्रीमान के वनलाल वेन्ना। Thank you, Honourable Chairman. Today I want to mention about the urgent redressal of income tax that is issued to scheduled tribe citizens of Mizoram. Honourable Chairman, sir, as per Section 10, Clause number 26 of the Income Tax Act, the Constitution of India provides tax exemption to scheduled tribe citizens all over the country. This Act grants income tax exemption to scheduled tribe individuals residing in the state of Mizoram, which means that we, the Mizos, are exempted from paying income tax. Despite this exemption, some people among Mizo community used to receive income tax notifications requesting clarification on various matters, some of which date back several financial years. Some of our tribal people who are not accustomed to filing income tax due to their exempt status often find it difficult to understand and respond. Even when some people manage to reply, provide their income tax exemption certificate, tribal certificate and residential certificate, they often perceive harassment from the officials of income tax. On behalf of the tribal people in Mizoram, feel that our people are being unnecessarily harassed, contrary to the protection provided by the Constitutions. Honourable Chairman, sir, I humbly request you to take necessary action and to convene the Office of Principal Chief Commissioner of Income Tax, North East Trans Region, Guwahati, Assam. Thank you, Chairman. श्रीमान अमरपाल मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण, दीर्घकालिक और जनहित से जुड़ी हुई आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, प्रतापगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है, जहां पर लगभग